Hello friends, I am RK Rajan, founder of DCI. How are you? I hope you people doing well. So friends, today I am going to discuss some important question regarding research aptitude. In previous lecture, we already discussed some basic idea regarding research, basic terminology about research, which type of topic generally came in your exams. So now I am going to give some proper examples like whatever written here. Suppose action research, sampling method, research ethics, various methods of research. So one by one we explain all topics and give proper examples which type of question generally came in your exams, NTA NET exams. So you people must hear again and again. If you learn properly, I assure about that each and every question will be right in NET exams, in upcoming NET exams. So first topic we written here, action research. So regarding action research, question would come like that: what are the activities which take place during the stage of reconnaissance in action research? So answer would be identifying and classifying general idea, identifying and classifying general idea, describing the facts of the solution situation, constructing a general plan, developing the next action steps. So many options given there, but only describing the facts of the situation will be correct answer, and explaining the facts of the situation. So again I am repeating, what are the activities which takes place during the stage of reconnaissance in action research? So answer would be describing the fact of the situation and explaining the facts of the situation. Next question, they people ask from sampling method. Sampling method also important topic for your exams. So regarding sampling method, they people ask, a college teacher intends to study the problems of latecomers in the classroom. Which type of sampling method will be appropriate in this context? So answer would be purposive sampling. Purposive sampling. Answer क्या होगा? Purposive sampling होगा. And after that, one question came from research ethics topics. Research ethics mandate use of appropriate and authentic procedure to arrive at truth and advancing solution to the problem. Origin में कहा उन लोगों ने, credibility of research is not only a prized goal but prerequisite for excellence in human pursuit. So क्या होगा यहाँ पे? दोनों टर्म करेक्ट होगा. Both assertion and reason both are correct, and reason is the correct explanation of assertion. After that, various methods of research. They people ask various methods of research. कैसे क्वेश्चन आएगा यहाँ से? Various methods of research. एक तरफ दे देगा वो लोग अलग अलग मेथड, जैसे एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड और एथनोग्राफिक मेथड. जो क्वेश्चन आया था उसमें दिया हुआ था एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड और एथनोग्राफिक मेथड. So if I talking about experimental method, so experimental method related with studying the effect of manipulating independent variable on dependent variable under appropriate control imposed. अगर हम बात करें एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, सो क्या होगा यहाँ पे? एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड कंडक्टिंग ए प्रोब इनटू कॉजल फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस मैनिफेस्ट नाउ. क्लियर? आफ्टर दैट डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड का अगर हम बात करें, सो डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड a detailed description of the way people believe and act in a particular society. और लास्ट पॉइंट था ethnographic method. ethnographic method related to studies designed to obtain information concerning the current status of the phenomenon. current status of the phenomenon. क्लियर? सो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा. आफ्टर दैट one question came from aesthetic about aesthetic. So when a particular aesthetic in a research situation is evidently declared to be significant, which of the following decision will be considered tenable? ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था. क्लियर? सो राइट आंसर वुड बी null hypothesis is rejected. इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? null hypothesis rejected हो जाएगा. alternate hypothesis is accepted. alternate hypothesis is
एक्सेप्टेड, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था। आफ्टर दैट वन क्वेश्चन केम फ्रॉम इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन रिसर्च, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन रिसर्च। So question, which of the following features best describe an independent variable in research? So answer would be it is the cause in the cause effect relationship and it is the condition or characteristic which is manipulated in experimental study. Clear? After that one question came from errors, chance / accidental errors. Chance or accidental errors in research will cause often results to depart from the true value as often in the direction or in another. और स्टेटमेंट सेकंड में कहा systematic errors causes often results in research to vary in a particular direction and is far more likely to catch the researcher by surprise than in chance errors. So friends, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर करेक्ट, यहाँ पे दोनों करेक्ट है। क्लियर? आफ्टर दैट वन क्वेश्चन केम फ्रॉम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च. So qualitative research is an umbrella term to refer to various research strategy that share certain characteristics. The data collected have been termed soft, that is rich in description. और स्टेटमेंट सेकंड में कहा quantitative research is mainly hypothetical-deductive and employs mostly statistical technique for data analysis. So friends, यहाँ पे भी both statement and statement second दोनों क्या है, correct है. After that one question came from non-probability sampling method. Non-probability sampling method से क्वेश्चन पूछा गया था. Which of the following are non-probability sampling method? तो यहाँ पे आंसर गया था, क्या क्या होगा बताओ? जजमेंटल सैंपलिंग होगा और स्नोबॉल सैंपलिंग होगा और कोटा सैंपलिंग होगा. सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड का अगर बात करें तो याद रखना है क्या क्या होगा यहाँ पे, जजमेंटल सैंपलिंग होगा और स्नोबॉल सैंपलिंग होगा और कोटा सैंपलिंग होगा. आफ्टर दैट वन क्वेश्चन केम फ्रॉम स्केल ऑफ मेजरमेंट description. We already all points written here. So scale of measurement से क्वेश्चन कैसे पूछा था? One side they people given a scale of measurement and another side they people given description of properties. So scale of measurement में पूछा गया था nominal, ordinal, interval और ratio and एक तरफ उसका description दिया हुआ था. If I talking about nominal का अगर बात करें तो उसका आंसर हो गया nominal क्या बताता है, classification और ऑर्डिनल क्या करता है, क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डर्स. इंटरवल क्या बताता है, क्लासिफिकेशन ऑर्डर एंड इक्वल यूनिट्स. और रेशियो क्या बताता है, क्लासिफिकेशन ऑर्डर इक्वल यूनिट्स एंड एब्सोल्यूट जीरो. क्लियर? तो मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन था. वन क्वेश्चन केम फ्रॉम मेथड एंड प्रोसीड्यूर ऑफ research. Method and procedure of research. In which of the following there is a greater flexibility in both the methods and process of research? So answer would be ethnography and phenomenology. You people must remember क्या होगा यहाँ पे, ethnography and phenomenology. After that one question came from application of ICT in research. So application of ICT in research is relevant in which of the following stage? So you people must remember survey of related studies और डाटा एनालिसिस एंड इंडेक्सिंग द रेफरेंसेस. क्लियर? आफ्टर दैट कुछ की टर्म्स पूछा गया था रिसर्च के अंदर. सम की टर्म्स यूज्ड इन रिसर्च. विच टाइप ऑफ की टर्म्स जनरली आस्क इन योर एग्जाम्स? सपोज हाइपोथेसिस, सैंपल, रिसर्च डिजाइन, रिसर्च टूल्स. सो यू पीपल मस्ट रिमेंबर हाइपोथेसिस का अगर हम बात करें तो हाइपोथेसिस क्या करता है, ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द पोटेंशियल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ए स्टडी. अगर हम बी का बात करें, सैंपल का बात करें तो सैंपल क्या करता है, सैंपल क्या इंडिकेट करेगा, ए सबसेट ड्रॉन फ्रॉम ए डिफाइंड सेट. अगर हम रिसर्च डिजाइन का बात करें तो रिसर्च डिजाइन क्या करता है बताइए, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर कंडक्टिंग रिसर्च. रिसर्च टूल का अगर हम बात करें तो ये क्या इंफॉर्मेशन देगा, टेक्निक्स यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन. तो कुछ बेसिक टर्म है रिसर्च के अंदर, वो भी आपको जानकारी रखना है, उसके बारे में प्रॉपर वे से जानना बहुत जरूरी है, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है. वन क्वेश्चन केम फ्रॉम रिसर्चर से पूछा गया था. रिसर्चर से पूछा गया था, कैसे पूछेगा रिसर्चर से क्वेश्चन? A researcher reports his / her research findings to the research audience in such a way that his / her personal views are necessarily getting supported. This would involve issue relating to. So answer would be research
एथिक्स है, रिसर्च एथिक्स यहाँ पे करेक्ट आंसर गया था। क्लियर? आफ्टर दैट वन क्वेश्चन केम फ्रॉम गुड सैंपल इन रिसर्च। गुड सैंपल इन रिसर्च के बारे में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड सैंपल इन रिसर्च? सो आंसर वुड बी representative of population characteristics and precision and accuracy in approximating the parameters and freedom from bias will be the correct answer. Clear? After that one question came from hypothesis. Hypothesis से कैसे क्वेश्चन पूछेगा? A research scholar finds through a statistical analysis that the value of t is significant. What decision is warranted to on the basis of this hypothesis? So आंसर यहाँ पे क्या गया था? The null hypothesis should be rejected or the research hypothesis should be accepted. Clear? After that one question came from reliability. Reliability से भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। Reliability हो गया, validity हो गया। So reliability is necessary but insufficient condition for validity accept of research tool. और statement second में कहा validity is threatened when the test measure only construct it is designed to measure in a research. So friends यहाँ पे statement first is correct. पहला जो रिलायबिलिटी के बारे में हमने कहा कि रिलायबिलिटी इज नेसेसरी बट इनसफिशिएंट कंडीशन फॉर वैलिडिटी एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च टूल, ये बिल्कुल करेक्ट है। बट स्टेटमेंट सेकंड में जो कहा वो क्या है? इनकरेक्ट है। वैलिडिटी इज थ्रेटेंड व्हेन ए टेस्ट मेजर, ऐसा नहीं होता है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। आफ्टर दैट वन क्वेश्चन केम फ्रॉम नॉन प्रोबेबिलिटी, वन क्वेश्चन केम फ्रॉम साइंटिफिक मेथड्स ऑफ रिसर्च। साइंटिफिक मेथड्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन पूछा, कैसे पूछा गया यहाँ पे? आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। सो आंसर वुड बी क्लियरली डिफाइंड वेरिएबल्स एंड प्रोसीड्यूर, और क्या होगा यहाँ पे? इंपेरिकली वेरिफिएबल हाइपोथेसिस, और यहाँ पे एबिलिटी टू रूल आउट राइवल हाइपोथेसिस। ये पॉइंट याद रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके नेट एग्जाम्स में। आफ्टर दैट वन क्वेश्चन केम फ्रॉम रिसर्च एथिक्स। कैसे क्वेश्चन पूछा गया था? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिसर्च एथिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट वल्नरेबल इन रिसर्च? सो आंसर वुड बी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, याद रखना है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। वन क्वेश्चन केम फ्रॉम MHRD इनिशिएटिव से पूछा गया था। MHRD इनिशिएटिव से पूछा गया था। MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव इज सो द सिंधु प्रोवाइड स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर एक्सेस टू। सो आंसर वुड बी ई जर्नल्स, याद रखना है आपको, क्या होगा? ई जर्नल्स। आफ्टर दैट वन क्वेश्चन केम फ्रॉम रिसर्च प्रोजेक्ट यूजिंग ट्रायंगुलेशन अप्रोच। रिसर्च प्रोजेक्ट यूजिंग ट्रायंगुलेशन अप्रोच, इसका क्वेश्चन पूछा गया था। इन रिसर्च प्रोजेक्ट यूजिंग ट्रायंगुलेशन अप्रोच विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म of the investigation on studying parental participation attitude and problems? So answer would be interview होगा यहाँ पे, observation होगा, और क्या होगा यहाँ पे? focused group discussion हो गया। focused group discussion होगा। तो ऐसे आंसर गया था इसका, और ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। वन क्वेश्चन केम फ्रॉम रिसर्च फॉर्म्स के बारे में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फॉर्म्स एम प्राइमरली एट पुटिंग टू use the theoretical advances with an eye on exploring the potential for generalizability। generalizability के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पे आंसर गया था applied research would be the correct answer, applied research। after that one question came from types of research। टाइप्स ऑफ रिसर्च से भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में। सो यहाँ पे पूछा गया था जो क्वेश्चन, कैसे पूछा गया था? ए टीचर proposes to find out the effect of praise and encouragement during a teaching learning session based on a Skinner theory of reinforcement. What type of research will it belong to? So answer would be applied research। यहाँ पे जो आंसर गया था applied research गया था। One question came from sampling technique in research imply। sampling technique in research के बारे में भी पूछा गया था। कैसे क्वेश्चन पूछा गया था? Which of the following sampling technique in research imply randomization and equal probability of drawing the units? So answer would be stratified sampling or cluster sampling would be the correct answer। Okay, fine। after that one question came from a scale of measurement। scale of measurement से भी क्वेश्चन बनता है, और काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है। जैसे
स्केल ऑफ मेजरमेंट में क्वेश्चन पूछा गया था नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो, पहले भी डिस्कस किया था। नॉमिनल, यहाँ पे नॉमिनल का क्या होगा, नॉमिनल क्या करता है, क्लासिफिकेशन ओनली। ऑर्डिनल का बात करें तो ऑर्डिनल क्या करेगा, क्लासिफिकेशन इन ऑर्डर। और इंटरवल का अगर हम बात करें तो इंटरवल क्या करेगा, इंटरवल क्या करेगा, क्लासिफिकेशन ऑर्डर एंड यूनिट्स। और रेशियो का अगर हम बात करें तो रेशियो रिलेटेड विथ क्लासिफिकेशन ऑर्डर इक्वल यूनिट्स एंड एब्सोल्यूट जीरो। ये याद रखना है, स्केल ऑफ मेजरमेंट से जनरली यही क्वेश्चन पूछा जाता है। आफ्टर दैट वन क्वेश्चन केम फ्रॉम हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च के बारे में पूछा गया था। अरेंज द स्टेप्स इन ए हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च इन द करेक्ट सीक्वेंस, ऐसे पूछा गया था, करेक्ट सीक्वेंस। तो सबसे पहले आएगा आइडेंटिफाई एंड डिफाइनिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम। उसके बाद क्या आएगा, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन एंड डेवलपिंग ए डिजाइन ऑफ रिसर्च। एंड आफ्टर दैट उसके बाद क्या आएगा, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एंड ड्रॉइंग ए सबसेट देयर फ्रॉम। और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा डाटा कनेक्शन यूजिंग एप्रोप्रिएट रिसर्च टास्क फॉलोड बाय डेटा एनालिसिस। और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा टेकिंग ए डिसीजन ऑन द सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस वाया टेस्टिंग ऑफ द नल हाइपोथेसिस। क्लियर। सो यहां पे आया था अरेंज द स्टेप्स इन ए हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च इन द करेक्ट सीक्वेंस। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। आफ्टर दैट वन क्वेश्चन केम फ्रॉम की रिसर्च टर्म्स। अगेन की रिसर्च टर्म्स से पूछा गया है क्वेश्चन। जैसे एक तरफ दिया हुआ था की रिसर्च टर्म्स और दूसरे तरफ दिया होता है उसका डिस्क्रिप्शन। सो एक तरफ की रिसर्च टर्म्स में क्या क्या पूछा था, रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च हाइपोथेसिस, सैंपल ऑफ स्टडी और रिसर्च टूल्स के बारे में पूछा गया था। सो रिसर्च प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो क्या होगा, रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या करता है, द रिसर्च क्वेश्चन विच हैज टू बी आंसर्ड है। अगर रिसर्च हाइपोथेसिस का बात करें तो रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है, ए टेंटेटिव सॉल्यूशन और आंसर टू ए रिसर्च क्वेश्चन। अगर हम सैंपल ऑफ स्टडी का बात करें तो ए सबसेट ड्रॉन फ्रॉम ए डिफाइंड सेट और यूनिवर्स। और लास्ट पॉइंट रिसर्च टूल्स का बात करें तो ये क्या करता है, डिवाइसेस यूजिंग विच डाटा आर गैदर्ड। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था। उसके बाद आफ्टर दैट वन क्वेश्चन केम फ्रॉम मोरल एंड एथिकल नॉर्म्स के बारे में पूछा गया था। मोरल एंड एथिकल नॉर्म्स के बारे में पूछा गया था। मोरल एंड एथिकल नॉर्म्स के बारे में पूछा गया था। मोरल एंड एथिकल नॉर्म्स के बारे में। आफ्टर दैट उसके बाद पूछा गया था स्टेजेज ऑफ रिसर्च के बारे में पूछा गया था। स्टेजेज ऑफ रिसर्च के बारे में पूछा गया था। स्टेजेज ऑफ रिसर्च के बारे में पूछा गया था। स्टेप्स ऑफ रिसर्च के बारे में पूछा गया था। क्लियर। सो मोरल एंड एथिकल नॉर्म्स के बारे में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, मोरल एंड एथिकल नॉर्म्स के बारे में। ए रिसर्चर हैज टू ऑब्जर्व कोडल फॉर्मेलिटीज एट ऑल स्टेजेज विदाउट स्कोप एंड लीवे फॉर ऑफेंडिंग मोरल एंड एथिकल नॉर्म्स। ओरिजिन में कहा था इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन देयर इज हाउएवर ए कंसिडरेबल स्कोप ऑफ बीइंग एथिकली वल्नरेबल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों जो है assertion और reason both are true and reason is the correct explanation of assertion. After that stages of research के बारे में पूछ लिया गया था। stages of research के बारे में पूछा गया था। stages of research के बारे में the scope for employing ICT support in relatively more in which of the following stages of research. So answer would be data collection और क्या जाएगा data analysis. Data collection and data analysis will be the correct answer. After that one question came from steps of research के बारे में पूछा गया था। Steps of research, the scope for creating an imagination is largest in which of the following steps of research. So answer यहाँ पे गया था, आंसर गया था यहाँ पे आंसर गया था डेटा एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड इंटरप्रिटेशन। क्लियर। आफ्टर दैट वन क्वेश्चन केम फ्रॉम सब्सटेंसिव रिसर्च हाइपोथेसिस। सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस कैसे क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से, ए कॉलेज यूनिवर्सिटी टीचर प्लान्स टू टेस्ट हिज हर सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस इन ए मेजर प्रोजेक्ट which of the following statement are considered relevant in this regard. तो आंसर यहाँ पे क्या था,
substantive research hypothesis has to clearly specify the relationship among variables. याद रखना है क्या करता है substantive research hypothesis has to clearly specify the relationship among variables. और क्या करता है ये research hypothesis may be directed at finding out differential effect or relationship. और last point क्या था, the final decision on the research hypothesis may be reached indirectly by deciding the fate of the null hypothesis. Clear? After that one question came from research errors. research errors से पूछा गया था research errors. Using an appropriate parametric test in research project, the researcher finds evidence to reject the null hypothesis. In doing so, which type of error is likely? तो आंसर गया था अल्फा एरर. अलग अलग एरर देगा, अल्फा बीटा बोथ देगा, तो यहाँ पे आंसर जो गया था अल्फा एरर्स के बारे में आंसर गया था. आफ्टर दैट वन क्वेश्चन केम फ्रॉम सैम्पलिंग टेक्निक यूज्ड इन रिसर्च. सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में पूछा गया था. एक तरफ सैम्पलिंग टेक्निक दिया हुआ था और दूसरी तरफ उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था. सैम्पलिंग टेक्निक का अगर हम बात करें तो दिया था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, डायमेंशनल सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का अगर हम बात करें तो क्या होता है ये, ईच यूनिट इज गिवन एन इक्वल इंडिपेंडेंट चांस ऑफ बीइंग पिक्ड अप. और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का अगर हम बात करें तो याद रखना है द के इंटरवल इज ऑब्टेन बाय n and the units are drawn using the same, where n क्या है, population है, population size है, and n is declared sample size, desired sample size. Clear? See, dimensional sampling क्या होता है, the units are identified in terms of various specific features identified before drawing a sample structure. उसके बाद snowball sampling के बारे में पूछा गया था. snowball sampling related with first member unit is used to identify the second unit and so on. तो ऐसा क्वेश्चन फिर से रिपीट होने का चांस है, आप लोग ध्यान से एक बार याद रखेंगे. क्लियर? आफ्टर दैट मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट. मेथड ऑफ पूछा गया था क्वेश्चन, वी ऑलरेडी रिटन हियर, मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग द रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट. तो यहाँ पे दिया हुआ था डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट दे दिया था और एक तरफ दिया था उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था. जैसे पहला टेस्ट में दिया था ए टेस्ट रीटेस्ट मेथड, और दूसरा दिया था अल्टरनेट फॉर्म मेथड, तीसरा दिया था स्प्लिट हाफ मेथड और चौथा दिया था इंटर रैटर मेथड. क्लियर? सो टेस्ट रीटेस्ट मेथड क्या होता है, टेस्ट रीटेस्ट मेथड क्या होता है, एडमिनिस्टरिंग द सेम टेस्ट टू द सेम ग्रुप एट टू डिफरेंट सीरीज. याद रखना है आपको, एडमिनिस्टरिंग द सेम टेस्ट टू द सेम ग्रुप एट टू डिफरेंट सीरीज. अगर अल्टरनेट फॉर्म मेथड का बात करें तो अल्टरनेट फॉर्म मेथड क्या होता है, एडमिनिस्टरिंग द टू फॉर्म्स ऑफ द टेस्ट टू द सेम ग्रुप ऑफ टू डिफरेंट सेशन के बारे में होता है. यस. थर्ड जो है स्प्लिट हाफ मेथड का अगर हम बात करें तो स्प्लिट हाफ मेथड क्या होता है, एडमिनिस्टरिंग द टेस्ट इन वन सेशन विथ टू इक्विवेलेंट हाफ ऑफ द टेस्ट फॉर कोरिलेशन को दर्शाता है. क्लियर? आफ्टर दैट इंटर रेटर मेथड क्या होता है, इंटर रेटर मेथड, टू और मोर रेटर स्कोर द टेस्ट इंडिपेंडेंटली. क्लियर? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था. एक तरफ दिया था मेथड्स ऑफ एस्टिमेट